जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, द नेक्स्ट चैप्टर इज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. The earlier syllabus of the same chapter was only small business, but abhi recently 2 years back, when the नीति आयोग, that is planning commission का जो new name है, that's नीति आयोग. नीति आयोग had मतलब कि introduced many changes for the small business, and they had also added that the curriculum of entrepreneurship should be there since the child learns commerce. बच्चा जब कॉमर्स को लर्न करना शुरू करता है उसको तब से पता होना चाहिए, उसको ये पता है व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. सबके दिमाग में एक बात होती है कि इफ आई एम अ बिजनेसमैन आई शुड हैव अ कंपनी. बट जब कंपनी को हम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो बेस होता है नॉर्मली इट इज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर. मे बी the person is a sole proprietor, he is on to business partnership, but unless and until you don't know what is the meaning of entrepreneur, aap agar every businessman is an entrepreneur, every businessman is an entrepreneur अगर उसके अंदर वो skills हैं तो. but how it works, what are the subsidies, privileges or help assistance that is given by government, that comes under small business. and पिछले कुछ सालों में जो आपका MSME हम बोलते हैं, that is micro, small and medium enterprises, means enterprise को हम डिवाइड करते हैं माइक्रो, स्मॉल, मीडियम. लार्ज आपका कंपनी में आ जाता है. लार्ज विल कम अंडर द कंपनी सेक्शन, दैट वुड बी रूल्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013. बट जो आपके मीडियम, माइक्रो, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, यानी कि दे हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ the capital that a person invests. They are not under the Companies Act, but it is according to the capital they invest. The product they are going to manufacture, the services they are going to manufacture, and the skills that we require, that's entrepreneurship skill. तो ये आपका जो है, this will be the what we call as syllabus of this chapter. As per your CBSE syllabus, you have what is entrepreneurship development, why it is required. कई बिजनेस आपने देखे होंगे, वो स्टार्ट होते हैं, स्टार्टअप रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बट एट वन पॉइंट ईदर दे आर स्टैग्नेंट, दे डोंट ग्रो, या फिर दे आर क्लोज डाउन. एंड पिछले 5 सालों का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि जो स्टार्टअप बिजनेस हमारे रहे हैं, दे हैव ऑलवेज बीन इन लॉस. व्हाई? दिस इज बिकॉज स्टार्टअप स्कीम्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट इफ यू डोंट हैव द स्किल्स ऑफ सर्टेन, देर आर कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता है, अगर वो skills हमारे अंदर ना हो, then the business may not work out. The assistance that we need to receive from the government, if it is not there, the business may not run. इसी के लिए जो है, the government is right now for the past 2 years, अगर आप उनके रिपोर्ट कार्ड को निकाल के देखोगे तो देखोगे that they are
इनटू मोर MSMED को जो है बढ़ाने में ज्यादा दे आर टेकिंग द पेन. प्रोसेस जो सेकंड है आपका, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एज आई सेड स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स एंड हाउ दे आर फंडेड आर. अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी अबाउट सम entrepreneur. Not that every company will come into the company act, they would raise the IPOs, ऐसा नहीं होता है. Certain times they may be a small startup and they have the various kinds of investors, not IPOs, not banks, they have investors, उनको funding दिया जाता है. Some of the companies, they have been funded by very big giant companies. बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनको पहले करती है. कई बार क्या होता है, लेटर ऑन दे चेंज दैट इनटू अ प्रॉपर कंपनी फॉर्म एंड उसके बाद उसका स्टेक बन जाता है. लाइक आपका बायजूस जो था उसमें ऐसा ही था. इट वाज फर्स्ट एंजल फंडिंग, उसका एंजल फंडिंग था. Some investors from India, some investors from other countries, they may invest in a particular scheme, not a business, in a particular project. They may help out the startup business. एक हमारे घर के पास जो है, there is one very famous outlet which is called as Sandwiches. Sandwiches, WEDGES. उसमें क्या है, मतलब उन्होंने जब स्टार्ट किया था, द एरिया वॉज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी सी, मतलब शॉप नहीं कह सकती हूँ मैं उसको, आउटलेट. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, मतलब देखने में उन्होंने बहुत एम्बियंस को बहुत ही सुंदर तरीके से रखा हुआ था. उसमें दे यूज टू गिव वड़ा पाव एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सैंडविचेस. सैंडविच में भी उनके डिफरेंट थे एंड साथ में द बेवरेजेस. द startup was started by 5 students who belong to IM, मतलब यहाँ पे जो IMS है, IMT के बच्चे थे, मतलब वो MBA के स्टूडेंट्स थे. they were from Institute of Managing Training from Ghaziabad only, and they started off this. They were 5 friends and really that outlet is very good. मुझे तो, मैं कभी, अभी तो फिलहाल तो फॉर द पास्ट 1.5 years I haven't even gone to those places, but if I really, अगर मुझे उस तरफ जाना पड़ता तो मैं वहां तो जरूर मोइटो जरूर पी कर आती हूँ. बट they also try to start its branches somewhere in Vivek Vihar and 2 more areas. It did not work out. अभी recently someone told us कि उसको जो है एंजल फंडिंग मिल रही है किसी कंपनी से. So ये जो स्टार्टअप्स होते हैं, they are funded by different people, not by raising IPOs, debentures, कैश. ये जो कैश क्रेडिट वगैरह तो आपके हर कंपनी, हर एक बिजनेस में चलता है, बट दे डोंट हैव दीज. दे आर फंडेड अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस लोन्स. इनको कुछ फंडिंग मिलती है, तो वो क्या है. देन कुछ लोग आपने देखा होगा, वो लोग लिखते हैं, कुछ सामान आपका होता है विच इज क्रिएटेड, जैसे कोई दवाई बनाई जाती है, तो दैट फॉर्मूला इज अंडर द पेटेंट्स, और उसको जो है इट इज प्रोटेक्टेड अंडर लॉ. That's intellectual property rights, which also includes your right up. अपनी बुक को खोलेंगे आप लोग, इफ यू ओपन योर बुक, उसमें आप अगर देखोगे, मतलब इट इज
not to be republished. Copyright ऐसे words लिखे होते हैं. Open your book and read it. It is written copyright. This is what is called as IPR. That's intellectual property rights. Though they are protected. Then as per, जैसे हम कंपनीज के लिए कंपनी लॉ पढ़ते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वी हैव द MSMED एक्ट. सो उसके क्या डेफिनेशंस हैं, और कौन से को हम माइक्रो बोलते हैं, किसको हम स्मॉल बोलते हैं, किसको हम मीडियम बोलते हैं, उसका. देन हाउ डू दीज बिजनेस हेल्प इन इंडिया? दीज बिजनेस आर इन फैक्ट, आपको मैं बताऊं ना, तो अगर हम कंपनीज कहते हैं ना, तो दे आर ओनली 1/3. द एंटायर इज हमारा स्मॉल बिजनेस के थ्रू ही चलता है. ऑल द बिग बिजनेस जो है, इनकी जो लाइनअप्स होते हैं, इनका जो स्ट्रिंग होता है, वो स्मॉल बिजनेस से होता है. देन व्हाट आर द डिफरेंट एजेंसीज? जैसे हमने उसमें पढ़ा था बैंक्स के लिए कि आपका ICICI, IDBI, IFCI, ऐसे आपके एजेंसीज होते हैं जो कंपनीज उनको मतलब कि हेल्प करते हैं. इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए व्हाट आर द स्कीम्स एंड एजेंसीज दैट आर देयर? एंड स्पेशली अगर आप अपने बिजनेस को, इफ यू आर स्टार्टिंग अप योर स्टार्टअप, इफ योर स्टार्टअप इज इन सम रूरल एरिया, सम बैकवर्ड एरिया, then what are the incentives provided to you? One of the most important and repeated question ये वाला होता है, और शायद ही कोई ऐसा मतलब कि स्कूल होता है जो इस क्वेश्चन को नहीं लेता. What are the incentives that is given to the business for setting up in rural and backward areas? 6 marker question hai, it always comes. So that is the syllabus that you need to do. Now, as I told you that in our country, हमारी country में, we are not talking about any other, but अपनी country को अगर हम देखते हैं, तो if you look into a graph also, you'll see that जो large companies हैं, they constitute a very small portion, and जो हमारे small scale industries हैं, जो घर घर के अंदर हैं, cottage industries, very micro industries, looms आपके, weavers, then आपके handicrafts, they constitute maximum production and in fact the maximum employment, which we are going to study. अभी आपके जो है in Delhi, I'm telling, you are having the trade fair, I think. In trade fair, if you go, or if you have ever gone, you must have seen there are some pavilions specifically for the cottage industries. मतलब जो भी आपके pavilions होते हैं, even if it is West Bengal also, उनके मतलब कि वहां पर आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाया जाता है, वहां पे कौन सा इंडस्ट्री है. लाइक इन बांग्लादेश, इन वेस्ट बंगाल इट इज जूट इंडस्ट्री आपके होते हैं, उनके बनाए हुए जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिस्प्ले में किया जाता है. इफ यू गो टू केरला, देयर यू विल फाइंड द कॉयर इंडस्ट्रीज, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स वहां पर होते हैं. इफ यू गो टू अनदर प्लेस, यू विल फाइंड द खादी का आपका होता है. आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दैट. एम आई राइट? दिस, ये जो आपका ट्रेड फेयर होता है ना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का, एक्सपैंड करने का. Small scale industries contribute significantly to the development process and act as a vital link in the industrialization in terms of
production, employment and export for economic prosperity by widening the entrepreneurial base and use of local raw materials and indigenous skills. लोकल रॉ मटेरियल्स मतलब ये इंडस्ट्रीज वहां होती हैं जहां आसपास में आपको ऐसी चीजें मिल जाती हैं और जो लोग वहीं के होते हैं, लाइक हमारे क्राफ्टमैन. एज आई नाउ गिव यू द एग्जांपल ऑफ कॉयर इंडस्ट्री. आपका केरला में वहीं के जो लोकल है, जूट इंडस्ट्री, लोकलाइट्स हैं, मतलब उनके स्किल्स जो हैं दे आर यूज्ड. Small scale industries dominate the industrial scenario in the country with the sizable proportion of labor force and tremendous export potential. आपके मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होते हैं ना वो इसी चेन से चलते हैं. In India, the village and small industry sectors consist of both traditional and modern small industries. Traditional आपके वही जो हैंड से बने तो पुराने टाइप में यूज होता था, and the modern after the use of powers वो. This sector has 8 subgroups. हैंडलूम मतलब हाथ का जो करघा, हैंडीक्राफ्ट लाइक एम्ब्रॉयडरी, निटिंग वगैरह, कॉयर, कॉयर इज आपके जो नारियल का जो आपका वो निकलता है वो, सेरिकल्चर दैट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. हमारे यहाँ आपको पता है वेस्ट बंगाल के आपका सिल्क अलग है, जम्मू कश्मीर का सिल्क अलग है, कांचीपुरम का सिल्क अलग है. सो ये जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म मतलब कि उसको देन ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ प्रॉपर क्लोथ मटेरियल. खादी, खादी आपका जो है ऑल द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपके हो गए, आपके क्लोथिंग्स आपके हो गए, आपका पेपर आपका हो गया. एंड विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम. पहले हमने पढ़ा हैंडलूम जो हाथों से चलता है, पावर लूम्स आपके पावर से चलते, जितना भी आपका टेक्सटाइल्स है वो पावर लूम्स के अंदर आ जाता है. The last two come, that is small scale industries and power looms, come under the modern small industries, while the others come under the traditional industries. The 6 village and small industries together provide the largest employment opportunities in India. As I told that अगर आप ग्राफ को देखोगे तो जो आपकी कंपनीज हम जिनको बोलते हैं या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी स्मॉल पोर्शन इन आवर कंट्री. और दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज मोर नाउ ऑन टू द MSMED, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मतलब अगर हम आने वाले स्टूडेंट्स को, आने वाले जनरेशन को, इफ वी आर पुलिंग देम टूवर्ड्स द सेकेंडरी सेक्टर, तो वी विल बी हैविंग मोर इंडस्ट्रियलिस्ट, मोर कैपिटल and of course development. In India, the village and small industries consist, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, the last two comes. Now what happens is, how do the, as I said, there are certain parameters. मतलब जैसे हमने कहा कंपनी एक्ट, 1 पर्सन कंपनी, तो कंपनी में भी हमने देखा था प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड. तो देयर वाज अ डेफिनेशन कि प्राइवेट कंपनी में कितना मिनिमम आपके जो है कैपिटल होना चाहिए, कितना आपका उसमें पब्लिक लिमिटेड में होना चाहिए. एंड देन द नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, ये भी हमने पढ़ा. When we are dividing the MSMED, उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब इंडस्ट्री को कैसे हम करते हैं, ये माइक्रो है, ये स्मॉल है, ये उसको हम करते हैं. The number of persons employed in business while we are filling up the forms. The capital, जब हम लोग GIN अपना लेते हैं या फिर अपने लिए UIN लेते हैं, तो उस वक्त में हम फॉर्म फिलअप करते हैं. It is established and we also register it under the same.
the volume of output or value of output of the business, power consumed for business activities. However, there is no parameters which is without limitations. So it depends. The definition used by Government India to describe small industries, क्या लिया है उन्होंने? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. जो उनका मेन है वो है व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर डूइंग इन प्लांट एंड मशीनरी. हमारा प्लांट एंड मशीनरी में क्या है वो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है दे आर टेकिंग इट इनटू द कंसिडरेशन. This measure seeks to keep in view the socio-economic environment in India, where capital is scarce and labor is abundant. ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कैपिटल है वो कम है लोगों के पास, और जो काम करने वाले हैं वो ज्यादा है. इसीलिए वी हैव इंट्रोड्यूस दिस MSMED. The emergence of a large services sector has necessitated the government to include other enterprises covering both industries. SSI is used for small scale industry and related services entities under the same umbrella. Expansion of the small scale industry was taking place, growing into medium scale, and then they were required to adopt higher levels of technology in order to remain competitive in a fast globe. Thus, it was necessary to address the concerns of such enterprises, micro, small, medium, and provide them with single legal framework. अब क्या होता है? एक कंपनी है, छोटी है, ओवर द पीरियड कंपनी ग्रो करती है. तो जब वो ग्रो करती है, मतलब पहले उसके पास 15 एम्प्लॉइज थे, अब उसके पास 50 एम्प्लॉई हैं. तो अब आप कैसे, हाउ यू विल बी मेंटेनिंग, हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड देम. इसीलिए इसको क्या किया गया, इनको व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल एंड स्मॉल टू मीडियम, तो व्हाट विल बी द, कब हम उसको, क्योंकि हमें टैक्सेशन लेना पड़ता है, हमें टैक्स देना पड़ता है, हमें वी हैव टू गो, अगर हम इफ वी वांट टू गो फॉर सर्टेन असिस्टेंस, देन किस असिस्टेंस को किस बेसिस पे आप लोगे? फॉर दैट यू नीड टू पहले उसको क्लासिफाई करोगे ना, ये कौन सी इंडस्ट्री है, ये किसके अंडर आती है. एक कंपनी है, सॉरी एक एंटरप्राइज है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको अपने आप को माइक्रो कह रखा है, दैट वुड बी नॉट. और कल को इफ दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम मीडियम टू कंपनी सेक्टर, तो व्हाट शुड बी द एग्जिट मोड. इसीलिए गवर्नमेंट ने एक लीगल फ्रेमवर्क किया कि जो डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स थे, छोटे 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 थे, उनको कभी लोन नहीं मिलता था. एज आई यू नो, सोल प्रोप्राइटर को लोन नहीं मिलता है. दे डोंट गेट द लोन, दे डोंट गेट द मार्केटिंग हेल्प. कंपनी को कल को मार्केट करना है तो दे डोंट गेट द हेल्प, दे डोंट गेट अदर असिस्टेंस. तो कैसे किया जाए? और इफ दे आर ऑल ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेक्टर, अगर हम उनको एक सेक्टर में ऑर्गेनाइज कर देंगे तो क्या होगा? एटलीस्ट ये जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक फंड्स, then taxation, then if they are moving from one sector to another, so that would be easy. And that is how 2006 में आपका जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अलग किया गया. अब क्या है बेटा, आपको भी पता है, एक इंडस्ट्री होती है जो आपके गुड्स, टैंजिबल चीजों को प्रोड्यूस करती है. All the industries which are producing the tangible comes under manufacturing, and those who are coming under the service sector, insurance, advertisement, ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनको उन्होंने सर्विस सेक्टर में रख दिया. द रीजन इज इनकी कैपिटल के लिए देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस. मतलब इफ यू सी, you will see that there is certain difference.
Tomorrow, if you want to establish your own industry, you don't have the capital, then you can go under MSMED. और ये जो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स हमारे यहाँ पर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर नहीं देते हैं, दोज हु आर नॉट हैविंग, ये सारे जो हैं दे हैव बीन एडेड इनटू दिस सेक्टर्स. अब हम आते हैं इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस. एज यू नो, व्हेन वी से सोल तो हम एंटरप्राइज बोलते हैं. Manufacturing sector, in case of enterprises engaged in the manufacturing and production of goods, छोटे छोटे हैं, साबुन, अभी आप पढ़ोगे नीचे आएगा. टेलीविजन आपके हो गए, जो टेलीविजन के जो आपके बोर्ड्स होते हैं वो, मेनी ऑफ द फर्नीचर इंडस्ट्री आपका, दे ऑल कम अंडर MSMEs only. Anything in case of enterprises engaged in the manufacturing or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule to the Industry Development and Regulation Act, जो कि इसके अंडर आपका दिया हुआ, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एंड दिस इज, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे कि ये सारी इंडस्ट्रीज इनके अंदर आती हैं. दे ऑल कम अंडर दीज इंडस्ट्रीज. हम लोगों के लिए दीज आर ऑल वेरी कॉमन बिकॉज माई डॉटर इज इन, मतलब शी वॉज अर्लियर इन फैब इंडिया, एंड फैब इंडिया के अंदर क्या था कि वीवर, मतलब वो मुझे बताती थी कि फैब इंडिया अपने आप में तो इट्स अ वेरी बिग कंपनी, बट जहां मतलब कि उनके जो वीवर्स होते हैं, जहां से वो लोग अपना सामान वगैरह लेकर आते हैं, दोज जो वो इंडस्ट्रीज होती हैं, दे ऑल कम अंडर द मीडियम, स्मॉल, माइक्रो में आ जाती है. माइक्रो एंटरप्राइज सबसे छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस कैन कम एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. This can come as an MCQ. This can come as match the column. Where the investment is in plant and machinery. आप जो मशीनें खरीद रहे हो, जो आप सेटअप कर रहे हो, उसमें 25 lakhs होना चाहिए, not more than that. Those are called as micro enterprise. Small. Where 25 से ज्यादा लेकिन 5 crore तक, and medium 5 to 10. Means if you are manufacturing the things, if you are having the intangible service sector, then if your इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट, वहां पर आपका प्लांट तो होता नहीं क्योंकि आपने मशीनें नहीं रखनी है, आपके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक आपका दिस कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 lakh. एंड इफ इट इज अराउंड 10 to 2 crores है तो स्मॉल, एंड वेयर इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट इज मोर देन 2 but less than 5 crores, इनको हम करते हैं अंडर MSME के सर्विसेज में. While calculating the investment in plant and machinery, the cost of pollution control, research and development, industrial safety development and such other items shall be excluded. यानी कि सिर्फ प्लांट और मशीनरी का खर्चा है जो आप लगा रहे. So this is how we categorize the MSMEs on the basis of manufacturing and services. ये आपको मैंने बताया कि these are the major industries in the small sectors,
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने उसमें शेड्यूल में डाल रखा है, फूड प्रोडक्ट्स, अचार, पापड़। आई थिंक आप लोगों ने लिज्जत पापड़ की कहानी सुनी हो। यू विल, आई थिंक यू हैव दिस इन योर केस स्टडी, आपके केस स्टडी में है। दिस लिज्जत पापड़ वॉज स्टार्टेड, मतलब अगर हम आपकी केस स्टडी में तो थोड़ा सा सिर्फ विकिपीडिया वाला है। दिस वॉज स्टार्टेड बाय ग्रुप ऑफ विमेन एंड घर के अंदर जैसे दादियाँ वगैरह अचार पापड़ वगैरह बनाती हैं, तो दे यूज टू, मतलब वो घर में बनाती थी। लेटर ऑन इट स्प्रेड स्प्रेड हुआ एंड अल्टीमेटली नाउ इट इज सम क्रोज बिजनेस। आज तो इट इज अ बिग, मतलब कि बट इट वाज ऑल विमेन। जो लिज्जत पापड़ था वो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है, दैट कम्स अंडर द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो पिकल्स, पापड़, आपके जो भी एक घर जो मतलब ये ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिक वो। देन ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड पार्ट्स, chemical and chemical products, leather and leather products, basic metal industries. You can see basic metal industries. Then miscellaneous manufacturing industries जो दूसरी इंडस्ट्रीज को हेल्प करती हैं। लाइक अगर आप देखोगे हैंडल है किसी भी गाड़ी का, वो आपका स्मॉल स्केल में बनता है। यानी कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जुड़ी होती हैं। वो उनसे, अभी मैंने आपको बताया था ना कि यू आर गेटिंग योर रॉ मटेरियल्स, यू आर गेटिंग योर थिंग्स फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री, तो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं। बेवरेजेस, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड पार्ट्स, आपके जितने भी ये आयरन होता है, प्रेस आयरन होता है, ये सब। रिपेयर सर्विसेज, रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, machinery and parts except electrical goods, wool, silk, synthetic fiber and textiles, आपका पूरा लुधियाना, hosiery and garments, your वेस्ट ब्रीफ्स वगैरह जो होते हैं, जूट, मैंने आपको वेस्ट बंगाल का आई गेव यू द एग्जाम्पल, हेम्प एंड मेस्ता, they are all used in the textiles, नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट, पेपर प्रोडक्ट्स, खादी का आपको मैंने बताया। ये सम ऑफ these are the which directly comes under the small business. and in अगर मैं मोटी मोटी तौर पे कहूँ ना मैं आपको, तो सिंपल सी चीजें, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, इनके ये सारे एंसिलरीज होते हैं। यहीं से ये लोग सामान खरीदते हैं, रॉ मटेरियल सस्ते में। आई नो माई डॉटर टेल्स मी, मतलब कि शी वॉज इन, एज आई टोल्ड यू, शी, मतलब कि वी डिस्कस अबाउट दिस बिकॉज वी आर ऑल इन टू द सेम सेक्टर्स, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो माई डॉटर टेल्स मी दैट उनका जो, जैसे ये मैंने पहना हुआ है दिस कुर्ता, दिस वैसे मतलब कि आप मार्केट में जाके खरीदते हो इन द फैब इंडिया के शोरूम में, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3 to 3,500। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं ये लोग बनाते हैं, एंड ये जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं ये इनको बाई करती है। नाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये डायरेक्ट इंटरेक्शन रखें विद द कंज्यूमर्स, क्योंकि पहले तो ये होता था कि दे डिड नॉट गेट द हेल्प, दे डिड नॉट गेट द फंड्स। तो नाउ द गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड देम, और इस तरीके से दे आर गोइंग टू हेल्प आउट इन द बेटर। नाउ व्हाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे यहाँ पर 80% जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है एज वेल एज जो आपका फंड जनरेशन है, दैट्स फ्रॉम स्मॉल स्केल। फर्स्ट, small industries in India contribute 40% of the gross industrial value and 45% of the total exports from India. So you can see, ये वो कंपनीज हैं जिनसे मैंने आपको अभी जो एक एग्जांपल दिया, माय सिस्टर्स हस्बैंड, हेमा मैम की जो हस्बैंड है, ही इज इन दिस शाही एक्सपोर्ट्स,
And this Shahi Exports is one of the key export company in India. ये लोग क्या करते हैं, मतलब हाउ डू दे वर्क, ये तो हम लोग, मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि आपका नेक्स्ट लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं. आपने पढ़ा होगा माय ब्रदर इज वर्किंग इन एक्सपोर्ट हाउस. तो ये जो कंपनीज होती है ना, ये लोग इनसे, ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, इनसे सामान खरीदते हैं थ्रू वेरियस मिडलमैन. अल्टीमेटली दे सेल इट आउट टू द, तो ये जो एक्सपोर्ट्स होते हैं 45% आपका एक्सपोर्ट जो है इन्हीं चीजों से जाता है. यू कैन जस्ट इमेजिन. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Small industries are the second largest employers of human resource after agriculture. They account for 95% of the industrial units in the country. They generate more employment opportunities per unit of capital invested compared to large industries. क्योंकि large industries में आपके पास मशीनें होती हैं. एक बड़ी सी मशीन पे 2 जना भी काम कर ले बहुत है, क्योंकि आज का जो मतलब की टाइम है उसके अंदर वी आर हैविंग द डिजिटलाइज, सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिजिटल, यू कैन डू इट. बट इन द स्मॉल इंडस्ट्रीज एवरीथिंग इज डन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन विथ हैंड्स, सो they are therefore considered to be more labor intensive and less capital intensive. मतलब capital कम होता है, labor ज्यादा. As I said, जूट इंडस्ट्री, इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है जूट एंड कॉयर. दिस इज अ बून फॉर अ लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि आसानी से जॉब मिल जाती है. सप्लाई एंड इनॉर्मस वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स. Small industries in our country supply an enormous variety of products which include mass consumption goods, जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब कुछ इसी में आता है. रेडीमेड गारमेंट्स, होजरी गुड्स, आपके जो वेस्ट वगैरह जो है आपके ब्रीफ्स, स्टेशनरी आइटम्स, soaps, detergent, domestic utensils, leather, plastic and rubber goods, processed food and vegetables, wood and vegetables, wood and steel furniture, paint, vanishes, varnish जो आपके पेंट के ऊपर लगता है, safety matches, etc. Among the sophisticated, मतलब ये तो वो हैं जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं. थोड़ा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक और सोफिस्टिकेशन में जाते हैं तो टेलीविजन, एलसीडीज, ये सब कुछ छोटी छोटी कंपनीज होती हैं. कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट्स, आपके बीपी मशीन, देन आपका शुगर, जो द वन फॉर द शुगर, electronic teaching aids like overhead projectors, air conditioning equipment, drugs and pharmaceuticals, आपकी जितनी भी medicines, agricultural tools, equipment and several other engineering products. A special mention should be made of handlooms, handicraft and other products from traditional village industries in view of their export value. Maximum यही चीजें हैं आपकी. आपको पता है जिन चीजों को हम यहाँ पर 100 रुपए में खरीदते हुए लोते हैं ना, उन्हीं चीजों को ये लोग 10,000 में बेचते हैं इन अदर कंट्रीज. हमारे यहाँ की जो एम्ब्रॉयडरीड साड़ीज होती हैं, दे आर वेरी मच कॉस्टली. बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, इस पे 3 मार्क्स का देयर इज अ, वो राइट अ शॉर्ट नोट. मींस ये जो एरियाज है नॉर्मली दे आर इन द विलेजेस, घर के अंदर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बनी हुई है, कॉटेज इंडस्ट्रीज. तो जो आपके रीजनल है, इट कैन बी सेटल्ड. तो व्हाट हैपेंस इज उस पर्टिकुलर एरिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आसान हो जाता है. Small industries which produce simple products using simple technologies depend on locally available. They don't read the sophisticated areas. इनके पास लेबर है, सामान है, बहुत है.
So they can be widely spread without any location constraint. Like कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनके लिए आपको मार्केट एरिया पास में होना जरूरी है, रॉ मटेरियल्स का होना जरूरी है. दे thus they contribute significantly to the balanced development. अगर आप सिल्क का लेते हो, if you take silk, तो you will see that सिल्क आपका जम्मू कश्मीर में भी रियर होता है, देन बनारस में भी आपका होता है, देन इन आंध्रा के अंदर पोचमपल्ली पटोला है, यहाँ पर भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है. देन आप तो ये जो है लोकलाइज जहां जहां पर जैसा मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग कर. सो दैट कैन बी इफ आई ऑल्सो नेवर न्यू. पहले माई सब लोग बताते थे कि कांचीपुरम के अंदर घर के अंदर जो है लूम्स लगे होते हैं ना. आई यूज टू नो, ऐसे देखती थी मैं. अच्छा, क्योंकि मैं तो घर मतलब अपने घर को देखते, मैं सोचती ऐसे घरों के अंदर कैसे लोग काम करते हैं. बट अभी I had the opportunity, means 5-6 years back. तो I went there for some temple, some functions के, तो मैंने देखा कि सचमुच में वहां पर the people are working in the home, they are having the only the hand looms. Even जो वो colors use करते हैं, I think in Odisha there is one area जहां पे complete organic colors से जो है the clothes are made, the painting is made. एक मधुबनी जो है आपका बनता है. So they are very, very much in demand. Provide ample opportunity entrepreneurship. Anyone, as I said, can open it. The latent skills and talents of people can be channelized into business ideas. In urban areas, just 1 minute. In the urban areas we have, as I told, मैंने आपको sandwiches का जो example दिया था, that's one of the example. But in rural areas you may have little capital and almost nil formalities to start a business. तो वहां पर जो है, जो वहां पे जो youngsters होते हैं उनको, या फिर anyone who wants to have their own business, provides an opportunity. Small industries also enjoy the advantage of low cost क्योंकि उनको sophisticated materials की जरूरत नहीं है. And they don't have the overhead expenses also. लेबर ओरिएंटेड होता है तो लेबर की जो वेजेस होते हैं वो कम होते हैं. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका जो है कम हो जाता है. क्विक एंड टाइमली डिसीजन, since most of them are under sole proprietorship, most of them. So when the decision has to come, like they want to organize themselves, they want to change, they want to add, तो प्रोडक्ट्स आपके जो भी आपका डिसीजन होता है वो क्विक होता है. एंड यू डोंट नीड टू गो थ्रू द फॉर्मेलिटीज ऑफ द, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको नहीं चाहिए होती हैं. ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, quick and timely decisions can be taken without consulting many people as it happens in large size organization. Like in a company you have to go for a proper meeting, you have to call the investors, you have to call the board of directors. ऐसा कुछ नहीं है. If it is a business, a partnership, so you can contact your partner, and if it is sole proprietorship, you are going to take. New business opportunities can be captured at the right time. Due to the small size of the organizations, quick and timely decisions can be taken. New business can be taken. तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, most of the time, these are the schemes, most of the time these business get
importance. But yes, in our country थोड़ा सा जो पीछे प्रॉब्लम्स आती थी वो ये था कि दीज इंडस्ट्रीज वर स्कैटर्ड इनटू डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. मतलब घर लोग बना रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर इवन सप्लाइंग टू द बिग इंडस्ट्रीज, लेकिन उनकी इंडस्ट्री को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है. जब आप लिवाई का मतलब कि एक जूते या फिर वो पहनते हो तो किस आप क्या बोलते हो, मैंने तो लिवाई का पहना है. यू डोंट नो दैट हु हैज एक्चुअली मेड इट. So these industries, they don't get, and क्या होता है, they also suffer a setback. अगर कोई भी नई पॉलिसी स्टार्ट होती है तो they also suffer a setback. So just to make all those things into, और इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लेकर आने के लिए और एक्सपोर्ट और मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप को मतलब कि बढ़ाने के लिए the government has now organized them into different sectors. The next class we would move towards, as I told you, this is the one which is one of the most important question, that what are the incentives that the government gives if your industry is set up in a rural, backward, ट्राइबल और हिली एरिया. क्योंकि इन एरियाज में क्या है कि आपका रीच बहुत मुश्किल है. रूरल एरियाज के अंदर सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है, बैकवर्ड में करना बहुत मुश्किल होता है, ट्राइबल्स में बिकॉज यू हैव टू फाइट विद द लोकलाइट्स, एंड इन द हिली एरियाज इट इज डिफिकल्ट टू अप्रोच. तो अगर आप ऐसी इंडस्ट्रीज को ऐसी जगहों पर सेटअप करते हो तो व्हाट आर द incentives that the government gives? That is land. लैंड के लिए आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लाइक आपके वी कॉल इट एज हॉलीडे लैंड. मतलब उनको जो है फॉर सर्टेन एरिया सर्टेन ईयर्स दे डोंट नीड टू गिव द रेंट. समटाइम्स दे मे बी गिवन सब्सिडी कि आपको इतना है, रेट आपका इतना है, उससे कम में उनको लैंड मिल जाता है. NEPZs, economical special economical zones, have been set up in every state. Power, most of the states exempt such units from payment in the initial years. Water, non-profit, they get, even they get exemption of water charges for a period of 5 years. GST, less than 20 lakh अगर आपका turnover है, you don't need to pay. Raw materials, units located in backward area get a preferential treatment in the matter of allotment. मतलब अगर गवर्नमेंट अलॉट करती है तो गवर्नमेंट आपको सीमेंट, आयरन, स्टील वगैरह अलॉट करती है. सो दे अलोकेट टू इंडस्ट्रीज. तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो स्मॉल स्केल होती हैं इनको पहले प्रेफरेंस मिलता है. एंड देयर आर सम स्पेसिफिक यूनिट्स जो इनको फाइनेंस भी देता है. दोस्त जैसे आपका DIC इज देयर, देन देर आर NABARD इज देयर. तो दे गिव द लोन्स, इधर सब्सिडी मिलती है. सब्सिडी का मतलब है इफ यू आर टेकिंग 1 लाख है तो यू हैव टू रिटर्न बैक 85. एंड जो आपका परसेंटेज होता है द लोन का वो भी आपका द इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत कम होता है. एंड यू कैन स्प्रेड इट आउट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, लॉन्ग टर्म पर देते हैं. सो दीज आर द incentives that are provided by government for setting up your business in these areas, right? In the next class we'll be doing the next important concept, that is the entrepreneurship development characteristics. What are the things very important? ये मतलब as I said that these are going to these have been added recently, तो ये आपके लिए बहुत important रहेगा.